Okay, so hello and good morning, students. So this is the last basically topic of our unit 5, which is Viterbi algorithm. Now this algorithm is basically it covers under the topic convolutional decoding. अभी तक we had already done the encoding operation and their graphical representation. मतलब हमने encoding कर लिया और उस encoding को we have represented it through all the graphical representation like code tree, trellis diagram, state diagram. Now what we are trying to do is कि we will decode the already encoded operation. मतलब जो भी हमने decode करा है, I mean जो encode करा है, उसको हमें that means whether the messages we have provided as the received is exactly the transmitted or not. Decoding मतलब क्या होता है in simple words कि हमें जो भी received word मिल रहा है, we just need to check कि जो received word हमें मिला है whether it was the same message being transmitted, मतलब वही message transmit किया भी गया था या कुछ और किया गया था and we received something else. अगर if the received and transmitted are the same message, that means कोई error नहीं है ना. ऑब्वियसली अगर दोनों मैच कर रहे हैं दैट मीन्स जो भी ट्रांसमिट किया गया था द सेम वन वी हैव रिसीव्ड. नाउ इफ देयर इज सम डिस्क्रिपेंसीज या फिर कुछ डिफरेंस आता है रिसीव्ड में, दैट मीन्स देयर इज सम एरर. तो एज वी नो कॉन्वोल्यूशनल कोड इज बेसिकली कंसर्न विद द एरर करेक्टिंग पार्ट. सो अनलाइक लीनियर ब्लॉक कोड जहां की वी फर्स्ट नीड टू डिटेक्ट, हमें क्या करना होता था पहले वी वर डिटेक्टिंग कि हम डिटेक्शन करते थे पहले कि देयर इज सम एरर, और जब पता चलता था कि इस बिट पर एरर है उसके बाद वी वर चेंजिंग और रिमूविंग द एरर एंड करेक्टिंग इट. बट नाउ कॉन्वोल्यूशनल कोड क्या है कि एरर करेक्टिंग कोड ही है बेसिकली. तो इसमें ना डीकोड करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो एग्जैक्टली करेक्टेड कोड वर्ड ही मिलता है डायरेक्टली वो, और हम डायरेक्टली करेक्टेड कोड वर्ड को अगर हम रिसीव्ड से मैच करें, अगर हमारा सेम है तो मतलब कोई एरर नहीं था, और अगर डिफरेंट है तो मतलब जिस बिट में जहां चेंजेस दिख रहा है मतलब उसमें एरर था. तो इसमें वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा स्टेप फॉर करेक्टिंग. द कोड इटसेल्फ विल करेक्ट if there are any errors, and if there is not, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना कि हाँ why we will change anything, it will be the same, right? So there are some means algorithm basically. वैसे तो convolutional decoding में we have 3 types of convolutional decoding. However, your syllabus covers Viterbi only, and these 3 and it will use trellis diagram of course. So let me actually show you the main steps and some terms related with this convolutional decoding. Okay. See, yes, as you can see here, there are 3 methods for decoding. They are Viterbi, feedback, and sequential. However, your syllabus covers only Viterbi, and this is actually the maximum likelihood decoding. मतलब maximum likelihood decoding के अंदर ही this algorithm is being used, and we will use this to decode any of the message being provided. Now there are 2 terms which you must know while solving the convolutional decode. तो सबसे पहला है metric. Now metric is actually, it is defined as the Hamming distance of each branch of each surviving path from the corresponding branch of y. Now I know these terms might look like as some jumbles, but अभी के लिए क्या है मतलब we just need to know. You will actually see it through an example only. ऐसे में भी शायद clear ना हो, but yes, just know that this is an Hamming distance. हम किसी भी 2 टर्म्स के बीच में, 2 ब्रांचेस के बीच में विल फाइंड आउट द Hamming distance, और जो भी डिफरेंस आएगा वी विल टेक इट फर्दर. ठीक है. नाउ सर्वाइविंग पाथ. नाउ व्हाट इज दिस इज एक्चुअली, ये वो पाथ है, ये वो रास्ता है जिसका मिनिमम मेट्रिक हो. अभी मेट्रिक हमने क्या बोला कि जिस पाथ का हैमिंग डिस्टेंस जितना होगा उसके ऊपर हम मेट्रिक लिखते जाएंगे. और अब बहुत सारे ब्रांचेस को जोड़ के एक पाथ बनेगा ना, तो जिस ब्रांच का जिस पाथ का सबसे कम मेट्रिक होगा दैट विल बी द सर्वाइविंग पाथ. Now exactly what we are doing is, वो मैं एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगी, even you won't be able to grasp कि क्या हो रहा है वैसे theoretically. Now this is the algorithm for Viterbi. सबसे पहले initialization, that means we will label the leftmost state as trellis. Now I will show you through an example कि what does all this means. Now computation, that means this is the most important part, मतलब this is the main part where we are actually performing the Viterbi algorithm. Okay, I will name it
दैट मीन्स इसमें बस ना कुछ स्टेट्स होते हैं, हमें सारे सर्वाइविंग पाथ्स को आइडेंटिफाई करनी होती है, फिर उन सर्वाइविंग पाथ में मेट्रिक निकालना होता है, एंड आफ्टर फाइंडिंग द मेट्रिक विल आइडेंटिफाई द पाथ विद लोएस्ट मेट्रिक, एंड दैट विल बी द सर्वाइविंग पाथ, and the final step will be, and so this will be the final step that we will continue the computation until all the forwarded message or the received sequence is being used up. Okay, so now I'll show you through this example. जैसे कि C, जैसे यहाँ पे मुझे एक y मतलब क्या, received sequence है. Okay, ये मुझे एक received sequence दिया गया है और इसको मुझे डिकोड करने के लिए बोला जा रहा है. दैट मीन्स वेदर आई नीड टू नो दैट वेदर दिस इज द सेम मैसेज दैट वाज बीइंग ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट यही किया गया था एनकोड करके, और इसके साथ साथ हम ये भी पता करते हैं कि इनपुट में क्या दिया गया था. देखो यहाँ पर आउटपुट है, दिस इज बेसिकली आउटपुट है ना, मतलब एनकोड करके हमें ये मिला है, तो मतलब ट्रांसमिट जो किया है वो एनकोड करके ही तो मिलता है, और हम इनपुट हम कम बिट का देते हैं ना, याद है, और कन्वोल्यूशन में वो एनकोड ज्यादा बिट्स में हो जाता है. तो ये जो एनकोडेड है, ये मुझे एनकोडेड वर्जन मिल रहा है. मुझे चेक करना है कि क्या यही एनकोडेड ट्रांसमिट भी किया गया था, और एक चीज और क्या पता करना होता है, और हम क्या पता कर सकते हैं, आई मीन कि हमने इनपुट क्या दिया गया था. अब देखो याद करो, आई हैव टोल्ड यू जो कन्वोल्यूशनल कोड होता है उसमें हम 1/2 कोड रेट यूज करते हैं. तो 1/2 मतलब एक इनपुट देंगे और दो आउटपुट, इसलिए ना हम दो बिट के ही पेयर में इसका चेक भी करते हैं. नाउ व्हेनेवर वी आर प्रोवाइडेड टू फाइंड द डिकोडिंग, उसमें हमें एक कोड ट्रेलिस भी प्रोवाइडेड किया जाता है. अगर नहीं होता है तो वी मस्ट बी गिवन एटलीस्ट कन्वोल्यूशनल का मतलब जो मेन एनकोडर ऑपरेशन है ना, वो गिवन होगा एक डायग्राम के साथ, उससे हमें कोड ट्रेलिस बनाना होगा. यू नीड टू ड्रॉ अ कोड ट्रेलिस. बिना कोड ट्रेलिस के यू वोंट नो कि हम कौन से प्रेजेंट स्टेट में या नेक्स्ट स्टेट में जाना है. तो या तो ये गिवन होता है और यू आर गिवन डायरेक्टली कन्वोल्यूशनल एनकोडर जिससे तुम्हें कोड ट्रेलिस बनाना होगा. ओके, तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन अ कोड ट्रेलिस जहां ए इज द स्टेट, ए से नेक्स्ट स्टेट ए आ रहा है. जब हम 0 इनपुट दे रहे हैं, जब 1 इनपुट दे रहे हैं तो वी आर हैविंग बी. सिमिलरली बी से वी आर गोइंग टू सी व्हेन 0 इज बीइंग प्रोवाइडेड, और जब 1 इनपुट दिया जा रहा है तो वी आर गोइंग टू डी, एंड सो ऑन विद ऑल अदर स्टेट्स. ओके, देखो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहला इनपुट मेरे पास क्या है 1 1, तो आई विल राइट 1 1 हियर, और हम यहाँ से स्टेट स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले A0 स्टेट लिया है. हमेशा वी विल स्टार्ट विद ओनली A स्टेट, मतलब जो भी यहाँ पे पहले स्टेट होगा ना सबसे पहला, दैट स्टेट विल बी यूज्ड हियर. तो A ही होता है मोस्टली, हम A यूज करते हैं. तो यहाँ पर A लिखा मैंने, और A के देखो नीचे सबस्क्रिप्ट पे 0 लिखा है. दिस इंडिकेट्स दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, नाउ A से हम कौन से स्टेट पे जा रहे हैं, देखो A पर जा रहे हैं और B पर जा रहे हैं. और A पे कब जा रहे हैं, जब 0 इनपुट है, B पे जा रहे हैं जब 1 इनपुट है. तो दिस इज बीइंग शोन हियर. अब हम A से किस पे गए, A पर ही जा रहे हैं, बट आई विल शो हियर A1 एंड B1. ये जो सबस्क्रिप्ट है दिस इज बीइंग यूज्ड टू शो द नंबर ऑफ स्टेजेस. हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पर आ गए इसलिए A1 लिख दिया मैंने. ठीक है, नाउ ये जो मेरा आउटपुट सीक्वेंस था, मतलब रिसीव्ड सीक्वेंस 1 1 था, और हम इस ब्रांच के ऊपर आउटपुट क्या लिख रहे हैं 0 0. नाउ दिस इज वेयर वी विल फाइंड द मेट्रिक. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 बिट. तो दिस इज द हैमिंग डिस्टेंस एंड दिस इज द पाथ मेट्रिक 2. सिमिलरली इस 1 1 और इस 1 1 के बीच में डिफरेंस क्या है 0. तो यहाँ पे मैंने देखो पाथ मेट्रिक लिख दिया. अब मेरे पास दो स्टेट्स हैं A1 और B1. अब फिर से मैं A1 को डिफरेंशिएट मतलब डाइवर्ज करूंगी दो स्टेट्स में, बाइफरकेट करूंगी A2 और B2 में. अगेन 2 मतलब सेकंड स्टेज. सिमिलरली B को हम बाइफरकेट करेंगे C और D में, क्योंकि देखो B का C और D ही आता है, तो B को बाइफरकेट भी C और D में. अब नाउ इस स्टेज का नेक्स्ट रेस्पॉन्स मेरा क्या था 0 1, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे टोटल के ऊपर 0 1 लिखा है, और ये क्या है आउटपुट है मेरे स्टेजेस का 0 0 1 1 1 0 0 1. नाउ कंपेयर दिस 0 1 विद 0 0, तो 1 बिट का डिफरेंस, 0 1 विद 1 1 1 बिट का डिफरेंस, 1 0 और 0 1 का डिफरेंस 2 बिट का डिफरेंस, और 0 1 और 0 1 के बीच 0 बिट का डिफरेंस. तो देखो सबके ऊपर पाथ मेट्रिक लिख दिया. नाउ अगेन अब मेरे पास फिर से एक लास्ट है इनपुट क्या है 1 0, तो अब 1 0 लिखा मैंने, और फिर A2 को बाइफरकेट करेंगे, B2 को, C को, D को, सबको बाइफरकेट कर लिया. अगेन सबके ऊपर पाथ मेट्रिक मतलब सबका आउटपुट लिख लिया, और इसको 1 0 से कंपेयर करके सबका पाथ मेट्रिक भी लिख लिया. नाउ अभी एंड नहीं हुआ है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथ इज हियर. देखो अब हम क्या कर रहे हैं, सारे पाथ्स लिख लिए मैंने. कैसे लिखे, देखो एक यहाँ पहुंचने का क्या रास्ता है A0 A1 A2 A3. सिमिलरली A0 A1 B2, नहीं सॉरी A0 A1 A2 के बाद एक B3, एक A0 A1 A2 A3, फिर A0 A1 A2 B3. सिमिलरली A0 A1 B2 C3 और A0 A1 B2 D3. अगेन A0 B1 C2 A3 एंड A0 B1 C2 B3 एंड इट विल गो ऑन. तो देखो ये सारे पाथ हमने लिख लिए. ठीक है,
अब देखो इस पाथ के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे पाथ मेट्रिक है, मतलब नाउ वी विल ऐड ऑल दी ब्रांच का मेट्रिक टू फॉर्म द पाथ मेट्रिक। जैसे देखो इस पाथ का, इस पूरे पाथ का कितना आएगा, 2 + 1 + 1 4, फिर 2 + 1 3 + 1 4, मतलब दोनों ही पाथ का 4 आया। अगेन 2 + 1 3 3, इसका 3 आया है, फिर 2 + 1 3 + 2 5। Similarly, I have added all the path metric, और देखो 4 4 3 5, अगेन 3 3 2 0। देखो बिल्कुल जो लास्ट पाथ है उसका 0 आया है, ये देखो यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, और ये देखो ये रहा लास्ट पाथ, इस पे भी 0, क्योंकि ये 1 0 ये भी 1 0, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, 0, तो हैमिंग डिस्टेंस 0, तो दैट मीन्स सारे पाथ का ही पाथ मेट्रिक 0 आया है। एंड हम अगर मुझे कहीं मेरे पाथ मेट्रिक में 0 मिलता है, दैट मीन्स सबसे कम, अभी सर्वाइवल पाथ बताया था ना कि जिसका लोएस्ट मेट्रिक होगा, देखो लोएस्ट मेट्रिक 0 आया तो ऑब्वियसली हम इसको लेंगे। हेंस वी हैव चोज दिस पाथ एज द सर्वाइविंग पाथ, ये मेरा फाइनल एक पाथ होगा। तो यही जो एक पाथ बना A0 B1 D2 D3, अब और ये देखो ऊपर डायग्राम में इसके आउटपुट क्या क्या है, 1 1 0 1 और 1 0। देखो 1 1 0 1 और 1 0, दैट मीन्स अगर सेम आता है जिसका मतलब क्या है कि जो मुझे ट्रांसमिट किया गया था वही मुझे रिसीव्ड है, दैट मीन्स इसमें कोई एरर नहीं है। तो दैट इज व्हाट वी मेंट, और हमने ये चेक कर लिया, डिकोड कर लिया। अब हमें ये चेक करना है कि इनपुट क्या प्रोवाइड किया गया था जिसको कि एनकोड करके हमने 1 1 0 1 और 1 0 बनाया। तो देखो ये जो डैश लाइन है मतलब क्या दिया गया था, 1 वाज द इनपुट, अगेन डैश लाइन मतलब 1 वाज द इनपुट, अगेन डैश लाइन मतलब 1 वाज द इनपुट, दैट मीन्स वी वर प्रोवाइडेड द इनपुट विथ 1 1 and 1। तो दिस वाज द इनपुट जिसके लिए कि हमें एनकोडेड आउटपुट मिला 1 1 0 1 1 0, और यही हमें रिसीव्ड भी मिल रहा है, दैट मीन्स देयर आर नो एरर। सो दिस इज हाउ यू decode convolutional code using Viterbi algorithm।